Hello to all the students of MCOM second year. I am Professor Sonia Digwa from SSGM College. So today I welcome to all of you students. In this lecture we have discussed about our subject of A group advanced auditing third chapter. The third chapter we have taken many lecture of that third chapter will be audit committee and corporate governance. Okay. So in first lecture we have discussed introduction, meaning, definition and elements of corporate governance. In first lecture I have discussed this and completed the four main concept of this chapter. In second lecture we have discussed about the principle of corporate governance in detail. We have discussed the principle of corporate governance in detail in our second lecture, and I have published this lecture on YouTube also and Google Meet. And third lecture we have discussed about our third main concept of this chapter will be report on corporate governance. In this section, third lecture we have discussed about the how many points which we have mentioned, whether we maintaining and compliance report and which kinds of information we have required to mention in the compliance of report, and that compliance report we have to submit the compliance reported which have been to the directly to the SEBI, Securities Exchange Board of India, Stock Exchange. We have to submit that compliance report of a particular company, have to submit that compliance report to the stock exchange. In third lecture we have discussed that points, and in third lecture we have completed 9 points. And in fourth lecture we have discussed about the issues of corporate governance and how many issues we have governance and corporate governance. And in last fifth lecture we have discussed the various compliances of corporate governance. There have been 8 compliances of corporate governance. Okay, so in last lecture we have discussed about various compliances of corporate governance. Okay, and that information I have tell you about all the in detail way. So now this is our sixth lecture of this online lecture of this chapter, audit committee of corporate governance. In sixth lecture we have to discuss what is the meaning of audit committee. Okay, so this is our last second concept which I have discussed. So now we have moved forward to end this chapter. So this is sixth lecture we have discussed about the audit committee of corporate governance. What is meant by audit committee? First I have tell you, audit committee is a subcommittee of board of directors. सो वेदर वी हैव डूइंग इन कंपनी जब अपनी पोजीशन एनालाइज करती है तो कंपनी के अंतर्गत एक ऑडिट कमेटी रहती है. ऑडिट कमेटी के अंतर्गत जो मेंबर अपॉइंटेड किए जाते हैं तो वो मेंबर कौन से रहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी. तो ऑडिट कमेटी क्या है? एक सब कमेटी है जिसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ही मेंबर रहते हैं. तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स हैं, तो वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर किसके लिए अपॉइंटेड करे जाते हैं? एज एन बॉडी of audit committee. Okay, so no person who is not a director cannot be appointed as a member of audit committee. अगर कोई board of director member board of director नहीं है, okay, so only the board of director of a company, जो board of director company के अंतर्गत हैं वही members अपॉइंट होंगे एज एन audit committee members. Okay, and only that person is particularly appointed for the audit committee, and who shall be a independent or a एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. सो ये इन डायरेक्टर और मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए ऑडिट कमेटी के अंतर्गत? 3 मेंबर्स. मिनिमम मेंबर्स ऑफ शैल बी अपॉइंटेड इन द ऑडिट कमिटी विल बी 3 members shall be appointed as an audit committee. Under the provisions of audit committee has been made in section 292A of the Companies Act 2013, which is required to every public sector company. जो every public sector company है जो unlisted है, every
पब्लिक सेक्टर लिस्टेड कंपनी एज वेल अनलिस्टेड जो कंपनी है पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो इनका कैपिटल पेड ऑफ कैपिटल और कंटिन्यूस कैपिटल विच हैव बीन more than 5 crore, they have to constituted appointed audit committee. जिस कंपनी पेड अप कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी का ओके पब्लिक जो कंपनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ओके पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड दो टाइप्स की कंपनी रहती है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जिनका पेड अप कैपिटल मोर देन 4 करोड़ है मोर करोड़ ओके सो दैट पर्टिकुलर कंपनी जिनका कैपिटल मोर देन 5 करोड़ है वही पर्टिकुलर कंपनी दे हैव टू अपॉइंट ऑडिट कमिटी। सो वही पर्टिकुलर कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी जो लिस्टेड है और अनलिस्टेड है जिनका टर्नओवर पेड अप कैपिटल टर्नओवर नॉट इन द सेंस पेड अप कैपिटल is more than 5 crore, only that particular public sector company listed or unlisted company have appointed एन ऑडिट कमिटी। एंड ऑडिट कमिटी वो अपॉइंट किसके मेंबर इसके अंतर्गत कौन कौन से मेंबर रहेंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के वही मेंबर क्या इससे रहेंगे ऑडिट कमिटी के अंतर्गत वो मेंबर रहेंगे। ओके अंडर द क्लॉज 49 दे हैव टू अपॉइंटेड एज एन लिस्टेड कंपनी। क्लॉज 49 के अंतर्गत ऑडिट कमिटी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोअप करेगी कि ऑडिट कमेटी का टर्म्स क्या है, पावर्स क्या है, ऑडिट कमेटी के राइट्स क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 49 एंड द सेक्शन विल बी 292 जो रेगुलेट किसने करा है, कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ये ऑडिट कमेटी शैल डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करती है, टू द बोर्ड। और ये ऑडिट कमेटी जो भी अंतर्गत काम होंगे ऑडिट कमेटी के वर्किंग टर्म्स एंड प्रोविजंस है, पावर्स हैं, टर्म्स एंड रेफरेंस है, जो भी ऑडिट कमेटी का वर्क है और रिपोर्ट ये अपनी जो ये किसको डायरेक्टली मेंशन करेंगे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी दैट डिटेल्स ऑफ ऑडिट कमेटी they shall be reported to the directly to the board of director of that company and in a audit committee the members जो ऑडिट कमेटी के अंतर्गत मेंबर्स रहेंगे वो पर्टिकुलरली कौन से कंपनी के रहने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाइक इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ओके सो इंडिपेंडेंट और क्वालिफाइड डायरेक्टर्स शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिट कमेटी मेंबर्स। सो जो क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं यही डायरेक्टर क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेंबर अपॉइंटेड होंगे एज एन ऑडिट कमेटी मेंबर। और दैट committee members as per the regulated by the particularly SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सर्कुलर प्रोवाइड करती है क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रूल्स एंड रेगुलेशंस सेक्शंस और जो भी पर्टिकुलरली प्रोसीजर है जो यानी कि ऑडिट कमेटी के लिए फॉलोअप करना पड़ता है, राइट्स और पावर्स ड्यूटीज़ और उनके अंतर्गत कौन से सेक्शन के अंतर्गत ऑडिट कमेटी अपॉइंट होगी और कौन कौन से डायरेक्टर्स, देयर आर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर कंपनी। कितने प्रकार के डायरेक्टर्स रहते हैं, क्वालिफाइड डायरेक्टर रहते हैं, अनक्वालिफाइड डायरेक्टर रहते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन इंडिपेंडेंट। तो ये सारे विविध प्रकार के डायरेक्टर की कैटेगरीज है। सो पर्टिकुलरली ऑडिट कमेटी के अंतर्गत दो ही डायरेक्टर में से मेंबर्स चुने जाते हैं, वन शैल बी क्वालिफाइड एंड सेकंड विल बी इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट में से वो दो डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे और क्वालिफाइड में से दो डायरेक्टर दे हैव टू बी अपॉइंटेड। तो इसी के मिला के ऑडिट कमेटी के अंतर्गत 3 डायरेक्टर्स दे हैव टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिट कमेटी मेंबर। ओके सो ये सर्कुलर किसने अपॉइंटेड रेगुलेट किया गया है, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैव टू प्रोवाइड अ सर्टिकुलर फॉर द क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड directors or members each shall be appointed as an audit committee member। so following जो norms है, following rules and regulations है जो ये डायरेक्टर को किस तरीके से अपॉइंटेड करना है, तो ये सभी ने रेगुलेट करे हैं। ये नॉर्म्स फॉलोइंग ये 5 पॉइंट्स है, 5 to 6 पॉइंट्स हैं,
ये नहीं है, जब ऑडिट कमेटी के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं तो ये सारे स्टेप्स, ये सारे नॉर्म्स अपॉइंटेड करने पड़ते हैं और देखने रखते रहे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेबी which have been provided to the members of qualified and unqualified members of audit committee, qualified and independent. Okay, so first will be audit committee shall have minimum 3 directors of as an members. तो ऑडिट कमेटी के अंतर्गत मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और वो 3 डायरेक्टर अपॉइंटेड किसके लिए होंगे? एज एन मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी. सेकेंड विल बी all members of audit committee shall be financially literate and at least one member shall be accounting or related financial management expertise. So okay, जो 3 डायरेक्टर्स हैं, जो 3 मेंबर्स हैं ऑडिट कमेटी के अंतर्गत, उसमें से एक जो मेंबर रहेगा वो फाइनेंशियली लिटरेट. जिसे फाइनेंशियली लिटरेट मतलब जिसे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, एक्चुअली के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं उसकी प्रॉपर नॉलेज हो, उसके बारे में प्रॉपर ज्ञान हो, उसको फाइनेंशियली लिटरेट. तो एटलीस्ट उनमें से एक डायरेक्टर को प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज हो, उसको किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकाउंटिंग करनी है, उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट एज़ पर द डेट, एज़ पर द ड्यूरेशन, उनका क्या कॉस्टिंग रहेगा, किस तरीके से अमाउंट एनालाइज करने के पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उनका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरीके से फॉलो अप करेंगे, कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू घाट, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो ये उनके अकाउंटिंग प्रॉपरली, जो एक मेंबर रहेगा उसको प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज होनी चाहिए और जो इससे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज से और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉपरली ज्ञान होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली. तो वो ही पर्टिकुलरली मेंबर, जो 3 डायरेक्टर में से एक मेंबर को पूरी प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज होनी चाहिए. ओके, जो 3 डायरेक्टर में से एटलीस्ट 1 डायरेक्टर को. ओके, सो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में हमने ये सर्कुलर देखा, नॉर्म्स देखे जो ऑडिट कमेटी को फॉलो अप करने पड़ते हैं. मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और वो 3 डायरेक्टर अपॉइंटेड होंगे एज ए मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी. और जो उन सेकंड पॉइंट में हम क्या देखेंगे, जो एक पर्टिकुलर ऑडिट कमेटी का मेंबर है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अबाउट नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज की, अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. ओके, द थर्ड में हम क्या एनालाइज करेंगे, जब हम अकाउंटिंग, जो चेयरमैन रहेगा ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ओके, सो हम, क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली आपको बोला जो 3 डायरेक्टर्स रहेंगे, ओनली द 3 डायरेक्टर्स शैल बी अपॉइंटेड एज एन मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी. तो उसमें से जो एक डायरेक्टर, जो 2 डायरेक्टर्स क्या है, फर्स्ट विल बी क्वालिफाइड एंड द सेकेंड विल बी, जो फर्स्ट मेंबर एक मेंबर रहेगा वो क्वालिफाइड रहेगा और बाकी के जो 2 मेंबर रहेंगे विल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ओके, सो ये इसी के तो कंप्लीट होता है डायरेक्टर्स. सो उसमें से जो चेयरमैन रहेगा, उसका ऑडिट कमेटी का जो चेयरमैन रहेगा, चेयरपर्सन रहेगा, तो वो किस में से रहेगा, शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ओके, जो उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कंपनी का रहेगा तो वही एज एन चेयरमैन और चेयरमैन ऑफ दैट ऑडिट कमेटी का रहना चाहिए एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. फोर्थ विल बी द चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी प्रेजेंट एट एनुअल जर्नल मीटिंग टू आंसर द ऑल द क्वेरीज ऑफ एन शेयर होल्डर्स. तो जो ऑडिट कमेटी का चेयरमैन, तो वो चेयरमैन कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. और ये कंपलसरी है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही ऑडिट कमेटी का चेयरमैन रहेगा. ओके, जो कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वही किसके लिए अपॉइंटेड होगा, एज एन चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी. और ऑडिट कमेटी का जो चेयरमैन रहेगा वो सारी एनुअल जर्नल मीटिंग में प्रेजेंट रहेगा. पर्टिकुलरली जब भी एनुअल जर्नल मीटिंग कंपनी की रहेगी तो उन हर पर्टिकुलर जर्नल मीटिंग में वो चेयरमैन प्रेजेंट रहेगा और जो भी शेयर होल्डर की क्वेरीज रहेंगी, आंसर्स रहेंगे, उनको वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आंसर करेगा. जो भी शेयर होल्डर की डाउट्स रहेंगे, क्वेरीज रहेंगी, उनको आंसर करेगा वो पर्टिकुलर चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी. ओके, दिस इज अ 4 पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट विल बी द ऑडिट कमेटी मेन इनवाइट. जो ऑडिट कमेटी मेन इनवाइट किसको करेगी, ऑल द एग्जीक्यूटिव shall be present. The audit committee may invite such of the executive as it's considered appropriate to be present at the meeting
of the committee, but on occasion it may also meet without the presence of any executive of a company. तो ऑडिट कमेटी का मेन मोटिव क्या रहेगा कि दैट वो सारे जो एग्जीक्यूटिव है उनको इनवाइट कर ले, पर्टिकुलरली मीटिंग का टाइमिंग उनको मेंशन करे और वो एनालाइज करे कि कौन कौन से एग्जीक्यूटिव उस पर्टिकुलरली कमिटी मीटिंग में प्रेजेंट थे। और जो अब ऑडिट कमेटी अपनी मीटिंग एनालाइज करती है, मीटिंग करती है जो 3 मेंबर्स की, तो इसमें सारे एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट रहने चाहिए और अप्रोप्रिएट कौन कौन से एग्जीक्यूटिव है उनको पर्टिकुलरली इनवाइट करें उस मीटिंग के लिए। और उस ओकेजन पे सारे मेंबर, कौन कौन से मेंबर प्रेजेंट थे और कौन कौन से मेंबर प्रेजेंट नहीं थे, उनकी प्रेजेंस, उनकी अटेंडेंस को काउंट करें और कौन कौन से एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट थे उनकी अटेंडेंस काउंट करके रिपोर्ट में मेंशन करें कि हाँ दैट मेंबर्स इज़ पर्टिकुलरली प्रेजेंट ऑन दैट मीटिंग, दैट टाइमिंग, एंड दे हैव टू पास एज स्पेशल एक्सपेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, सो ये ऑडिट कमेटी को एनालाइज करना पड़ता है एंड उनको इन्वाइट करना पड़ता है वेदर द एनी मीटिंग शैल बी हेल्ड as per the year, as per the duration, as per the period, 4 month duration, 5 month duration, जब भी उनकी मीटिंग होगी उनको इनवाइट करना पड़ेगा टू द एग्जीक्यूटिव। ओके, सो द 6th point विल बी द कंपनी सेक्रेटरी शैल एक्ट एज एन सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी। जो कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी का जो कंपनी CS रहेगा, ओके, द कंपनी सेक्रेटरी क्या काम करेगा, सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी। Company secretary is play as an secretary of the audit committee. So that's why the company secretary has been appointed in a audit committee as a secretary of an audit committee. Okay, so now we have discussed the how many members have required for an audit committee. There have been 3 members have been required to appointing for audit committee. 3 directors has been the member of an audit committee और उसमें से एक डायरेक्टर को फाइनेंशियली स्टेटमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत एक्सपर्टाइज होना चाहिए। जो चेयरमैन रहेगा का ऑडिट कमेटी का, वो कौन रहेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 4th विल बी ऑडिट कमेटी का जो चेयरमैन है वो प्रेजेंट रहना चाहिए एनुअल जर्नल मीटिंग के, और जो शेयर होल्डर की डाउट्स हैं उनको सॉल्व करें, उनको आंसर करेगा और ऑडिट कमेटी इनवाइट करेगी एग्जीक्यूटिव्स को। ये 5th पॉइंट का है। और जो कंपनी सेक्रेटरी 6th पॉइंट में हम क्या एनालाइज करेंगे, तो कंपनी सेक्रेटरी शैल एक्ट एज एन सेक्रेटरी ऑफ दैट कमिटी, ओके, ऑफ दैट ऑडिट कमेटी विल बी अपॉइंटेड। एरिया ऑफ वर्क, एरिया ऑफ वर्क में हम लोग क्या देखेंगे, एरिया ऑफ वर्क एज पर सेक्शन 292 ऑडिट कमेटी क्या काम करती, किसके अंतर्गत काम करती है, इस कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन सेक्शन और रेगुलेटेड, और ऑडिट कमेटी का काम क्या है, क्या स्कोप का क्या है, उनका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, और ऑडिट कमेटी के क्या काम है जो डायरेक्ट करती हैं, एक्सपर्टाइज करती हैं टू द मेंबर्स को अपॉइंट करती हैं, और उनके अंतर्गत क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो ऑडिट कमेटी का क्या एरिया ऑफ वर्क है उसके अंतर्गत वो लोग मेंशन करते हैं। सो एज पर सेक्शन 292 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 or 2030, the audit committee has been mentioned. The audit committee has been appointed. So as per the section 292 of the Companies Act, the audit committee shall be appointed, और उन्हीं के अंतर्गत जो सेक्शन के अंतर्गत रूल्स एंड रेगुलेशन है, ओके, 49 क्लॉज जो हमने पहले स्टडी करा था, तो इसके अंतर्गत ऑडिटर शुड डिस्कस अबाउट पीरियोडिकली अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सो इंटरनल, तो ऑडिट कमेटी क्या इसको यानी कि प्रोवाइड करता है, शैल प्रोवाइड डिस्कशन ऑन। तो ऑडिट कमेटी किसके अंतर्गत डिस्कस करती है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, स्कोप ऑफ ऑडिट का स्कोप क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, किस मोटिव से ऑडिट करी जाती है, पर्टिकुलरली कंपनी के अंतर्गत क्यों ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट क्या है, अब डायरेक्टर के ऑब्जर्वेशन क्या है, और डायरेक्टर किन किन चीज़ों को रिव्यू करता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, वेदर द डायरेक्टर हैव मेकिंग and financial statement and preparing a financial statement, how many procedure, how many observation and how many points of review they have to review,
एंड हाफ ईयरली एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं, सबमिशन जब रिपोर्टिंग करते हैं, बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेक्ट, कौन कौन सी चीज़ों पे ऑडिटर को रिव्यू करना है, कौन कौन से एक्सपेक्ट को क्लासीफाई करना है, ओपिनियन देना है, अपना ओपिनियन ट्रू रहना चाहिए, फेयर रहना चाहिए ऑडिटर को। तो ये सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑडिट कमेटी इन चीज़ों पे काम करता है। ऑडिट कमेटी किन किन चीज़ों पे काम करता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करता है, स्कोप ऑफ ऑडिट को एनालाइज करता है, ऑडिटर किन किन चीज़ों पे ऑब्जर्व करेगा, किन किन चीज़ों को, उन चीज़ों को रिव्यू करता है, अपना ओपिनियन देता है, एनालाइज करता है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड बिफोर द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, यानी कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट सबमिशन पहले ये सारी चीज़ों को क्लासीफाई ओपिनियन देने के बाद, ये सारे कंटेंट्स रिपोर्ट में मेंशन करने के बाद, जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये रिपोर्ट, ये सारी चीज़ों को ऑडिट कमेटी क्लासीफाई करती है जब विद बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एंड दैट विल इंश्योर द यस कंप्लाइंस रिपोर्ट के अंतर्गत, और कंप्लाइंस रिपोर्ट के अंतर्गत इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इंफॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए। तो ये सबमिशन बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट द ऑडिटर शैल रिव्यू ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ओके, सो दिस इज़ अ एरिया और वर्क ऑफ एन ऑडिट कमिटी। इन सारी चीज़ों पे वर्क करती है एज पर द सेक्शन 292 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और ऑडिट कमेटी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किन किन चीज़ों पे वर्क करती है, ऑडिटर के किन किन चीज़ों को असाइन करती है, देख करती है, प्रॉपर चेक करती है। तो ये सारी रिपोर्ट को कब सबमिट करना है और बिफोर सबमिटिंग कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है ऑडिटर को, तो ये सारी ऑडिट कमेटी इन सारी चीज़ों पे काम करती है, इन सारी पर्टिकुलर एरिया को एनालाइज करती है। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, इन चीज़ों को एनालाइज करती है ऑडिट कमेटी। तो ये क्या है? एरिया और वर्क जो ऑडिट कमेटी करती है। ओके, इन द नेक्स्ट द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। तो रोल क्या है ऑडिट कमेटी का? मेन ऑडिट कमेटी का रोल क्या है, काम क्या है ऑडिट कमेटी का? कंपनी के अंतर्गत ऑडिट कमेटी किस फॉर्म में काम करेगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ये रोल के अंतर्गत हमें पॉइंट जो मेंशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कि द ऑडिट कमेटी का मेन रोल क्या है? अकॉर्डिंग द ऑडिट कमेटी शैल बी वर्क अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 49। तो अकॉर्डिंग टू द रोल क्लॉज ऑफ 49, the role of audit committee will work as per the following resources। तो फर्स्ट रोल क्या है ऑडिट कमेटी का? रिकमेंडिंग and the appointment and removal of external auditor, fixation of audit fee and also approval of payment for other service। रिकमेंडिंग फर्स्ट वो क्या करेंगी? अपॉइंट कौन कौन से अपॉइंट करेगी? ऑडिट कमेटी का रोल क्या है कि किन किन मेंबर्स को वो अपॉइंट कर रही है एज एन, और ऑडिटर को वो अपॉइंट कर रही है, किस पोजीशन के ऑडिटर को अपॉइंट कर रही है? रिमूवल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट कर रही है, और उनकी क्या सैलरी रहेगी, उनकी ऑडिट फ़ी क्या रहेगी, किन क्या रिक्वायरमेंट क्या रहेगा। तो ये फर्स्ट उनकी सैलरी पेमेंट्स, तो ये ऑडिट का की फर्स्ट ऑडिट कमेटी की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अपॉइंट, और फर्स्ट रोल है टू अपॉइंट अ पर्टिकुलरली इंटरनल, रिमूवल और एक्सटर्नल ऑडिटर, अपॉइंटिंग देयर मेंबर्स, अपॉइंटिंग द ऑडिटर एंड देयर फिक्सेशन ऑफ ऑडिट फी, उनकी फ़ीस कितनी रहेगी ये पर्टिकुलरली एनालाइज करें और अप्रूव करें उनका पेमेंट के, उनको कितना उनकी सर्विस जो देंगे ऑडिटर एक्सटर्नल और रिमूवल ऑडिटर, जो यानी कि अपनी फ़ीस क्या रहेगी, उनके पेमेंट क्या रहेंगे ऑफ वर्किंग ऑफ ऑडिटिंग, जो ऑडिटिंग का वर्क करेंगे तो उनकी ऑडिटिंग फ़ीस क्या रहेगी, अप्रूवल ऑफ पेमेंट। तो ये ऑडिट कमेटी पहले काम करेगी, अपॉइंट करेगी और उनकी फ़ीस एनालाइज करेगी, पर्टिकुलरली ऑडिटर्स की क्लासीफाई करेगी। ओके, सेकेंडली उनका काम ऑडिट कमेटी का रोल क्या रहेगा? रिव्यूइंग with the management external and internal auditor the adequacy of internal control system। जो मैनेजमेंट यानी कि क्या है? ओके, रिव्यूइंग द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर क्या काम करेगा,
उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ऑडिटर किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एंट्री करी है, पर्टिकुलरली किस रिव्यू कर रहे हैं। तो ये ऑडिट कमेटी रिव्यू करेगी कि पर्टिकुलरली जो मैनेजमेंट क्या काम करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को फॉलोअप कर रहे हैं, एनालाइज क्या वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर को इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर पर्टिकुलरली फॉलोअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट अथॉरिटी किस तरीके से काम कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को ऑडिट कमेटी फोकस करेगी। देन थर्ड रिव्यू क्या करेगी, मैनेजमेंट ऑफ रिव्यूइंग द मैनेजमेंट ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द सबमिशन टू द बोर्ड। ओके, जो मैनेजमेंट का वर्क रहेगा, मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करती है पर्टिकुलरली, तो बिफोर द सबमिशन टू द बोर्ड, तो उनका जो मैनेजमेंट का वर्क है, ओके, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन सारे स्टेटमेंट को बिफोर द सबमिशन, और जब हम ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिशन करने से पहले, तो उनका काम है रिव्यू करने का, मैनेजमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कमेटी को रिव्यू करना है। ओके, सो दैट इज़ द पर्टिकुलरली रोल ऑफ ऑडिट कमेटी का, ये रोल है कि उन सारी जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको प्रॉपरली एनालाइज करे बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू द बोर्ड। ओके, सो इन चीज़ को रिव्यू करेगा। और फोर्थली, रिव्यू द फाइंडिंग ऑफ एनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन बाय द इंटरनल ऑडिटर into the matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control system as a material nature and reporting the matter to the board. ओके, सो ऑडिटर, ये जो ऑडिट कमेटी की रोल क्या है मेन, कि फाइंड करे कि कंपनी के अंतर्गत इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के इन्वेस्टिगेट करे कि कंपनी के अंतर्गत कौन सा स्टाफ और कौन सा पर्टिकुलर मेंबर फ्रॉड मेकिंग कर रहा है। तो और इंटरनल ऑडिटर ने क्या किसी, यानी कि जो कंपनी का स्टाफ को एनालाइज करा है, इंटरनल ऑडिटर ने किसी भी सस्पेक्ट किया है किसी को, यानी कि फ्रॉड करते हुए देखा है, या किसी की जो, यानी कि किस पर्टिकुलर मेंबर, किस पर्टिकुलर स्टाफ ने ऑडिट फ्रॉड किया है इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंतर्गत, ट्रांजैक्शंस में यानी कि मिस मेकिंग करा है, ट्रांजैक्शन के अमाउंट्स को सस्पेक्ट करा, तो क्या इंटरनल ऑडिटर ने किसी को क्लासिफाई करा है, तो ये जो ऑडिट कमेटी के है उसको रिव्यू करेगी, उसको चेक करेगी कि किसने स्टाफ ने फ्रॉड मेकिंग करा है। तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जो रिपोर्टिंग है, मटेरियल एनालिसिस, अमाउंट एनालिसिस एंड पर्टिकुलरली पोजीशन एनालिसिस, तो ये ऑडिट कमेटी क्लासीफाई करती है। ओके, एंड द फिफ्थ पॉइंट विल बी डिस्कशन विद द इंटरनल ऑडिटर ऑन एनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड फॉलो अप इन देयर ऑन। तो इन सब जो, यानी कि इंटरनल ऑडिटर ने देखा कि हाँ किसी ने अंतर्गत इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत ये पर्टिकुलर स्टाफ ने फ्रॉड मेक करा है, तो इससे क्या रहेगा, वो जो ऑडिट कमेटी है जो इंटरनल ऑडिटर से डिस्कस करेगी कि आपने किसी सस्पेक्ट को फाइंड करा है कि किसी ने पर्टिकुलरली फ्रॉड मेक करा है और किसी ने एरियर मेक करा है, तो इसके वो ऑडिटर कमेटी फॉलोअप लेती रहेगी विद द इंटरनल ऑडिटर, और आपने किस मेंबर को फाइंड आउट किया है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ऑडिट कमेटी इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर से चेक करती रहेगी, क्या उन्होंने किसी मेंबर को फ्रॉड करते हुए देखा है कंपनी के अंतर्गत। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेगी ऑडिट कमेटी विद द इंटरनल ऑडिटर, और डिस्कस करेगी पर्टिकुलरली एनी फैक्ट और फाइंडिंग अप, ओके, on the any kind of matter which internal auditor have been find up. Okay, then 6th point will be reviewing the adequacy of internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit. ओके, सो मेस्ट ऑफ ऑडिटर क्या रिव्यू करेगा कि इंटरनल ऑडिट किस प्रकार से की जाती है, उसका क्या फ़ायदा है, और वो किन किन चीज़ों पे इंटरनल ऑडिट एनालाइज होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है इंटरनल ऑडिट का, और
कौन कौन से डिपार्टमेंट ऑफ वर्क को एनालाइज करती है इंटरनल ऑडिट। तो ये ऑडिट कमेटी को रिव्यू करना रहता है प्रॉपरली कि इंटरनल ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिटिंग का वर्क क्या है, और किन किन डिपार्टमेंट को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल ऑडिट एनालाइज करती है, उनका वर्क एनालाइज करती है, और सीनियर मेंबर कौन है डिपार्टमेंट का, और ऑफिशियल हेडिंग डिपार्टमेंट की क्या रिपोर्ट है, उनका क्या रिपोर्ट इंटरनल ऑडिट किस प्रकार से हुई है, किस तरीके से उनकी रिपोर्टिंग क्या है, टोटल रिपोर्टिंग। सो ये पर्टिकुलरली, और फ्रीक्वेंसी क्या है इंटरनल ऑडिट की, तो ये पर्टिकुलरली ऑडिट कमेटी को रिव्यू करनी पड़ती है वेदर दे मेकिंग एंड डिस्कस विथ एन इंटरनल ऑडिट। क्या इंटरनल ऑडिटर से वे रिव्यू करेंगे कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से रहती है, किस प्रकार की रहती है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टाफ कौन क्या क्या काम करते हैं। तो ये सारी ऑडिट कमेटी को रिव्यू करनी रहती है, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना रहता है। ओके, देन 7th पॉइंट के अंतर्गत क्या है, डिस्कशन विथ एक्सटर्नल ऑडिटर। जैसे कि वो यानी कि ऑडिटर कमिटी जिस तरीके से वो इंटरनल ऑडिटर से डिस्कस करती हैं ऑन एवरी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्क, इंटरनल ऑडिट वर्क और रिलेटिंग टू एनी काइंड, तो इसी के तरीके से जो ऑडिट कमेटी है वो एक्सटर्नल ऑडिट से भी बात करेगी। रिपोर्ट बिफोर द कमेंसिंग ऑफ ऑडिट, जब ऑडिट करने से पहले, वो ऑडिटिंग करने से पहले, ऑडिट कमेटी ऑडिटिंग करने से पहले वो एक्सटर्नल ऑडिटर से बात करेगी रिलेटिंग टू द नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट एंड द व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स, प्री पोस्ट वर्क, पोस्ट ऑफ ऑडिट और प्री वर्क ऑफ ऑडिट एंड पोस्ट ऑडिट वर्क, जो भी उनको काम करना है ऑडिटिंग, जब वो ऑडिटिंग करने से पहले, ऑडिटिंग करने से पहले किन किन, तो वो एक्सटर्नल ऑडिटर से डिस्कस करेगी कि हाँ अभी हम ऑडिटिंग करनी है तो किन किन सोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, किन किन पर्टिकुलरली एरियाज़ पे ऑडिटिंग का स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है, और हमें कौन कौन से प्लानिंग करनी है ऑडिटिंग की, और क्या क्या एक्सपेक्ट पे हमें कंटेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट्स, इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलरली कंपनी, तो रिपोर्ट में कौन कौन से क्लॉज, कंटेंट और प्रोसीजर फॉलोअप करने हैं। तो इसीलिए ऑडिट कमेटी डिस्कस किससे करेगी, एक्सटर्नल ऑडिट से। ओके, सो इन चीज़ों को पर्टिकुलरली एरियाज़ को फाइंड आउट करेगी एंड पर्टिकुलरली उन एरियाज़ पे डिस्कस करेगी विद द एक्सटर्नल ऑडिटर बाय द ऑडिट कमेटी। एंड द last 8 point will be reviewing the financial and risk management policy of the company। तो लास्ट पॉइंट पे क्या फोकस करेगी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी के और जो मैनेजमेंट रिस्क पॉलिसी है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉप मैनेजमेंट, जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है उनका वर्क क्या है और किस पॉलिसी के टूवर्ड्स वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका काम किस प्रकार का है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से रिव्यू करे जा रहे हैं, प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, और मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है कंपनी की। तो इन सारी चीज़ों को ऑडिटर को रिव्यू, ऑडिट कमेटी को रिव्यू करना है। ओके, सो ऑडिट कमेटी के क्या क्या रोल है, फर्स्ट दे हैव टू अपॉइंट अ रिमूवल और एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर। सेकेंड, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर का क्या काम है वो उनको असाइन करना है। थर्ड, जब ऑडिट करने से पहले ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने पर है, ऑडिट मैनेजमेंट कमेटी का क्या काम है तो वो ऑडिट कमेटी को देखना रहता है और रिव्यू करना रहता है। इंटरनल ऑडिटिंग वर्क और इंटरनल ऑडिटर क्या काम करता है, फ्रॉड फाइंड आउट करता है तो उसको रिव्यू करना है, और फिर उनसे कोई भी सस्पेक्ट फाइंड आउट हुआ इंटरनल ऑडिट से काम करते समय, किसी ने फ्रॉड मेक करा हो स्टाफ ने, तो वो ऑडिटर उनसे डिस्कस, ऑडिट कमेटी उनसे डिस्कस करेगी पर्टिकुलर ऑन दैट पॉइंट। 6, रिव्यू करेगी कि मेन इंटरनल ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिट का क्या क्या है, इसको ऑडिट कमेटी रिव्यू करेगी। 7थली, एक्सटर्नल ऑडिट से डिस्कस करेगी और ऑन द पर्टिकुलरली before commencing the audit, and lastly they have to discuss about the reviewing the financial position of the company and the what kind of management policy they have to mention, and they have to follow up whether they have managing particularly company। so management in सारी particularly management
और जो ऑडिट कमेटी है, जो कमेटी का वर्क है ऑडिट कमेटी की, तो ये का ऑडिट कमेटी का क्या रोल है, इन सारी पर्टिकुलर चीज़ों को फॉलो अप करना, इन सारी पर्टिकुलर कमेटी को काम डिस्ट्रीब्यूट करना, वर्क एनालाइज करना, प्रॉपरली रिव्यू करना, इन सारी चीज़ों को फोकस करना. सो दिस इज आर द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी. Then the review of certain information about audit committee we have discussed in next lecture. So now we have over this lecture. So if you have any query regarding this points, regarding this concept, you can ask us. So now we over this lecture. So thank you to all of you students.